मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो करंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी रजिस्टर, जैसे क्रोम का वायर है, उसमें हम देते हैं करंट, तो वो करंट उसमें हीट को प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। तो करंट के फ्लो होने से किसी रजिस्टर में हीट का प्रोड्यूस हो जाने की घटना हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट when current passes through a resistor is called the heating effect of current. So there are so many effects of current. One of the heating effect of current. Similarly, if we pass the current in any chemicals, suppose that H2SO4, then what happen? This chemicals dissociate into its ion, H plus ion and sulfate minus ion. On passing the current, the molecules of sulfuric acid H2SO4 is splitted into its ion. This is called the chemical effect of current. Means the process of dissociation of ion. The process of dissociation of ion. In other words, we can say that the phenomena of dissociation of ion, dissociation of a molecule into its ion, due to the flow of electric current is called the what? Chemical effect of electric current. Now this is the magnetic effect of electric current. So first of all we must know what is magnetic effect. So there is a material which is found in nature, generally in Magnesia, in Asia Minor there is a place in Asia that was a black stone which has a capacity to attract the small pieces of iron, steel, cobalt and nickel. So that name has given that substance is magnet. That chemical composition of the magnet was Fe3O4. Fe3O4. That is the chemical composition of the magnet, and it has a property to attract the small pieces of iron, nickel and cobalt. The same effect we observe when we pass a current in a conductor. Whenever we pass a current in a conductor and we put a compass needle near it, compass needle near it, this is a connecting wire, AB is a conductor and this is a switch, a battery, where this plus terminal minus terminal of the cell, this switch is off. We can say open circuit. It is the open circuit. What we found, this magnetic compass north-south direction. Magnetic compass is in north-south direction, but as soon as we on the switch, then what we find? When we on the switch, a current leaves the positive terminal and flow in the conductor from A to B. At the same time, we find that there is a deflection in our compass needle. Our compass needle deflected. तो ये कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो गई? ये तो मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती थी। ये किससे डिफ्लेक्ट होती थी? मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती थी। और अब हमने करंट को फ्लो कराया, यहाँ कोई मैग्नेट नहीं है, तो भी हमारी कंपास नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमको दे रही है क्या, कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया जिसने इस मैग्नेटिक कंपास को अपने डायरेक्शन से क्या कर दिया? मूव कर दिया। तो मैग्नेटिक कंपास का मूव करना ये शो करता है कि whenever current passes through a conductor, something is creating around it, and that something is forcing the what? Needle to move.
and magnet can move the magnetic compass. It means that magnetic property created around the conductor when current passes through it. When we off the switch, what happens? Then this compass needle come in the north-south direction due to the earth magnetism. Due to the we will study later. तो अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ये किधर रहती है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। लेकिन जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये करंट के फ्लो होने से इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है और वह फील्ड मैग्नेटिक कंपास को रोटेट कराता है। मैग्नेटिक कंपास को रोटेट कराने के लिए मैग्नेट होना चाहिए, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इस फेनोमेना को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज दैट द फेनोमेना ऑफ production of magnetic field around a conductor whenever current passes through it is called the magnetic effect of electric current. So this is your topic, magnetic effect of electric current. So is the strength of the magnetic field can be increases or decreases by changing the current. तो क्या हम अब ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा जो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, क्या इसकी ताकत को, इसकी स्ट्रेंथ को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर है हम इसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि परमानेंट मैग्नेट के पावर को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। जो हमारा मैग्नेट का पावर है उतना ही रहेगा, लेकिन इसके द्वारा जो मैग्नेट बनता है इसके पावर को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम देखते हैं जितनी ज्यादा करंट इसमें हम देते हैं उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कंपास नीडल ज्यादा एंगल से घूम जाता है। तो ये शो करता है कि जो हम ज्यादा करंट देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कंपास नीडल पर ज्यादा फोर्स लगाता है और उसके कारण हमारे कंपास नीडल ज्यादा टर्न कर जाती है। अब हम यदि क्या हम एक परमानेंट मैग्नेट आपके पास है, दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ, तो कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस पोलैरिटी? तो आंसर है नो, हम परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटीज को चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द पोलैरिटीज ऑफ दिस मैग्नेट। अगर ये कंपास नीडल इधर टर्न कर रहा है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करें, अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम नेगेटिव से जोड़ दे और इसको क्या बना दे पॉजिटिव, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वी फाउंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जो डायरेक्शन वो ईस्ट में घुमा रहा था अब किधर घुमाने लगा? जबकि इसके द्वारा ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें सुविधा क्या है हमारे लिए? हम चाहे तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो उसकी डायरेक्शन को अपनी डिजायर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय ए करंट ओवर द परमानेंट मैग्नेट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो फील्ड के द्वारा जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हमको इसको मूव कराना है तो हमें इसको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको इसको नीचे मूव कराना है तो हमको टच नहीं करना पड़ेगा। हमने इसको रिलीज किया है, किधर आ गई? नीचे आ गई। तो ये किसका फोर्स है? फील्ड का फोर्स है। वो कौन सा फील्ड है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और हर फील्ड का एक सोर्स होता है, जहां भी फील्ड है उसका एक सोर्स होता है। तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है? तो मास है। अर्थ के पास क्या है? मास है। और वो मास क्या करता है? किसी भी बॉडी को अपने तरफ, आप पढ़े न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एवरी मासिव बॉडी अट्रैक्ट अनदर मासिव बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो हमारा अर्थ यहाँ पर एक फील्ड तैयार किया, हमको यह दिखाई विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं उस फील्ड के प्रभाव से नीचे आ जाती है। तो दिस इज वी आर इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग कहाँ हैं?
ग्रेविटेशन के फील्ड में है। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने लिया और इसको रिलीज किया, ये किधर आया? नीचे। तो ये शो करता है कि हमारी जो ग्रेविटी है उसका एक फील्ड है, और उसके फील्ड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो क्या होगा? कुछ हाइट पे जाएगी, थोड़ा और स्पीड दे, थोड़ा और हाइट पे जाएगी। स्पीड को आप बढ़ाते जाइए तो ये डिफरेंट हाइट को कवर करेगी और पुनः वापस आएगी। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर हम इसी तरह से वेलोसिटी को बढ़ाते रहे तो क्या हर वेलोसिटी के लिए वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है, जहाँ पर एक सीमा है, जहाँ पर एक ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और वो आउटर स्पेस पे चली जाएगी, कभी वो पूरा वापस नहीं आएगी। उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इन्फिनिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब ये है कि हमारे ग्रेविटी के पावर का वहाँ पर अंत हो गया है, इसलिए वो क्या है? अनंत है। इसके वेलोसिटी वही। हाँ, तो इसके वेलोसिटी, अब हमारे पास अर्थ के पास तो इसके वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर आवर है, पर सेकेंड, सॉरी 11.2 इसके वेलोसिटी यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और पुनः अर्थ पे वो नहीं आएगा, और इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या 11.2 एस्केप वेलोसिटी अगर मान लिया जाए तो क्या 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? जब 11.2 है तो 12.2 तो होगी, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी की डिफिनीशन है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके ऊपर की सभी वेलोसिटी चला तो जाएगा, उसको इसके वेलोसिटी नहीं कहेंगे। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी 11.199 पे नहीं जाता है, 11.2 पे चला जाता है। 11.99 पे नहीं गया, 11.2 पे चला गया, तो 11.2 के बाद तो जाएगा, लेकिन वो सभी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी नहीं है। कौन सी वेलोसिटी है? 11.2, क्योंकि डिफिनीशन क्या कहती है? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करना है। तो ये तो बात हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की है, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड की मैं चर्चा कर रहा था। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो किसी मासिव बॉडी के चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें कोई बॉडी उसके ग्रेविटेशनल पुल को अनुभव करती है। ग्रेविटेशनल पुल को अगर अनुभव नहीं करती है, जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ तक के बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है, यहाँ के बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है यहाँ, लेकिन यहाँ के बॉडी को ये अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये क्या कहेंगे? दिस इज द आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जहाँ तक अट्रैक्ट कर लेती है, ये इसका क्षेत्र है, इसका फील्ड है, इसमें प्रभाव है। जैसे हर एक थानेदार है, उसका अपना थाना है, तो उसका एक रेंज है। कोई भी एक्टिविटीज उसके रीजन में होती है तो वो जिम्मेदार है, या उसको कार्रवाई करने के लिए वो एलिजिबल है, तो वो उसका फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या है? द स्पेस अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंसेड, द स्पेस अराउंड ए पर्टिकुलर थिंग इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंसेस। उसके प्रभाव को जितने क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दैट। अब ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, चार्ज है तो उसके चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव कर सके, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड में हम प्रभाव का अनुभव करते हैं। फील्ड में किसका अनुभव करते हैं? प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसे मैग्नेटिक फील्ड
क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक हमने उठाया है, इस पर लेक्चर होंगे, बोर्ड का काम कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो फील्ड जहां आ जाए एक शब्द में आप कहिए स्पेस। फील्ड क्या होता है? जैसे हम लोगों का फील्ड क्या है? स्पेस है। तो ये कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। किसके चारों तरफ क्रिएट होगा? मैग्नेट के चारों तरफ क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच another magnetic substances can experiences a magnetic force, in which another magnetic substances experiences a magnetic force. तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस। जहां फील्ड आ जाए वहां क्या जोड़िए? स्पेस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस। किसके अराउंड? अराउंड ए magnet in which another or any magnetic material or a magnet will experience a magnetic force. So this is the क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया। The direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. अब हम फील्ड है, जैसे हम ग्रेविटी कहते हैं, तो ग्रेविटी का एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या है? फील्ड फोर्स लगाएगा। अब फोर्स एक वेक्टर है, फील्ड क्या लगाएगा? हमेशा फोर्स। अब फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के पास क्या होगा? डायरेक्शन। तो उसका डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा कि किधर है। तो हम ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर बताते हैं? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द। किसी भी बॉडी पे ग्रेविटी किधर लगती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो एक डायरेक्शन होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक मैग्नेट ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। इसके चारों तरफ एक हमने फील्ड ये माना, यहाँ तक के मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल पर ये अपना फोर्स लगाता है। दैट फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पोल्स। अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट का इसमें नॉर्थ घूम रहा है, तो नॉर्थ को नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका फील्ड है। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है। Point A in the field where we want to know what is the direction of magnetic field. तो इसके लिए याद रखिए, वहां पर जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालना है, वहां पर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लीजिए। मैंने हाइपोथेटिकल वर्ड यूज किया, इसका मीनिंग है बता रहे हैं अभी। एक यूनिट नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेके रखिए और देखिए कि ये अगर नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल पर यह फील्ड क्या करेगा? तो ये नॉर्थ पोल को, ये मैग्नेट है, अब बताइए ये नॉर्थ को क्या करेगा? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ आके देखिए, यहाँ क्या नॉर्थ पोल को करेगा? तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हमको क्लियर हो गया। देखिए, ये नॉर्थ पोल से ये इधर जाएगा, अगर इधर है तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में चलेगा। तो हम मैग्नेट, अच्छा ये इस पॉइंट पे रख के जरा देखिए, इस पॉइंट पे क्या आएगा? ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और साउथ पोल क्या करेगा? अटैक करेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहाँ पर रखना क्या है आपको? फील्ड को चेक करने के लिए पोल कौन सेलेक्ट करेंगे? नॉर्थ पोल आपने यहाँ रखा, नॉर्थ पोल के पास रिपेल किया, तो दिस इज। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अटैक करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर नॉर्थ पोल को चारों तरफ ले जाए तो ये रिपेल करेगा, अटैक करेगा, ये रिपेल करेगा, अटैक करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा, अटैक करेगा। तो क्या हो रहा है? तो हम क्या देखते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो ये ऐसे चलना शुरू कर देता है। अगर हम नॉर्थ पोल को जगह जगह रखे तो यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ये रिपेल करेगा, ये अटैक करेगा। और दिस इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ
फोर्सेस। अगर हम वही काम इधर से करें, यहाँ रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइन। तो ये आपको फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। बोलो सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा ना? हाँ, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ रिपेल करेगा इसको। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन। हाँ, ये यहाँ ये नॉर्थ टू साउथ, और देखिए ये नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी पाथ on which an isolated unit north pole is considered to move। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यूनिट नॉर्थ पोल जिस रास्ते को फॉलो करेगा, उस रास्ते का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसको एक और भी आगे चलेंगे तो इसी को लिखा जाता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ, मतलब ये वो लाइन है जिस पर मैग्नेट का फोर्स काम करता है। ये वो लाइन है जिस पर मैग्नेट का फोर्स। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी पाथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ सड़क पिच कर दी गई है, उस पर वो चल रहा है, तो ये काल्पनिक रास्ता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज ए इमेजिनरी पाथ on which a unit north pole is considered to move। जिस पर एक यूनिट नॉर्थ पोल चलता हुआ माना जाए, या जिस पाथ पे वो चलता है वही पाथ क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ। तो अभी आपको बताया गया व्हाट इज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने लोग बता पाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हिंदी में ही बताओ। चलो बताओ, कुछ 5 साल आते हिंदी में बताओ। हिंदी में ही बताओ, डरना नहीं है, बताना है। बोलिए सर, जब एक कंडक्टर से जब हम लाइन करंट पास करते हैं तो इसके आसपास में एक फील्ड लाइन्स जनरेट होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट वाले प्रभाव। तो करंट के फ्लो होने से किसी कंडक्टर में के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का बन जाना, उसका प्रभाव पैदा हो जाना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको शॉर्ट में ही अगर कह दो कि फिनोमिना या प्रोडक्शन, फिनोमिना या ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिनोमिना ऑफ जनरेशन, उत्पन्न होना, फिनोमिना या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, याद रखो फिनोमिना है। क्या है? फिनोमिना है। किसकी फिनोमिना है? करंट की फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना है कि किसी कंडक्टर में करंट चलेगा तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक, अब दूसरा टॉपिक हमने लिया था इससे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड जहां भी बताया क्या बताओगे, तो क्या बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड है तो किसके चारों तरफ का स्पेस होगा, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस होगा, और वो कहाँ तक कवर हो, उसका रेंज माना जाएगा जहां तक वो किसी दूसरे मटेरियल पर मैग्नेटिक फोर्स लगा है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। आगे, हाँ, इन विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फील्ड हमेशा क्या लगाता है, फोर्स। फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है, और फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे,
अब उस पॉइंट पे यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे और उस पॉइंट पर रखा नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में चल देगा वही डायरेक्शन हो जाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? इमेजिनरी पार्ट, बहुत बढ़िया, इमेजिनरी पार्ट होती है। तो फिर क्या इमेजिनरी पार्ट किसका पार्ट होता है? जिस पर यूनिट नॉर्थ पोल चलता हुआ माना जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी पार्ट फॉलोड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ करीब है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर करीब है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी अगर खींचा जाए तो देखिए यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरियां क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो क्लोजनेस है, सेपरेशन है, वो कुछ इंफॉर्मेशन देती है। जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होती है, दैट इज ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ पोल पर मैग्नेटिक लाइन्स आप फोर्स से देखिए करीब है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की पहली प्रॉपर्टी ये है, द सेपरेशन ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन वेयर द रीजन वेयर फील्ड लाइन्स आर क्लोजर, जहां पर फील्ड लाइन पास होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहां पर फील्ड लाइन दूर होंगी, रेयरर होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है, देखिए